My name is Dr.Amit Kumar, Assistant Professor, School of Agricultural Sciences, IIMT University Meerut. Today I am going to give a lecture on red rot disease of sugarcane. Red rot of sugarcane. First I am going to introduce about what is the red rot disease. Red rot disease, a very severe disease for those farmers who growing sugarcane, because it's give the record losses once it comes into the field and cause the severe diseases. First of all, it's reported as a disease in 1893, first time by band from Java. After that, in 1901 by barber from Godavari river hills in India, and third times reported by Butler gave the name red rot. First time red rot disease. Previously it's not known properly, but Butler gave the first time its name red rot because its characteristics shows the red color after the infection. And all sugarcane growing areas, it's reported in all growing sugarcane areas. Epidemic, first time it's came and reported as an epidemic in 1939 to 40 in East UP and Bihar. First of all, after recognition, after distribution, that distribution occurs in tropical and subtropical regions of the world. In India, it's occurs in the most of the sugarcane growing states, particularly Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana and Punjab etc. In UP, some states are covered by this disease like Lakhimpur Kheri, Pilibhit, Muradabad, Bijnor, Amroha are severely affected by this disease. Economic importance, why we are studying, why we are discussing about this disease, because it has the severe losses, economic losses. So, induce conversion of sucrose into the glucose and alcohol in mature cane sugar plants due to the enzymatic action of the pathogen. Once it comes into the introduced into the field of sugarcane, it starts the decreasing sugar content into the crop, and then alcohol, its smell like alcoholic when in severe condition of the disease. Losses of sugarcane content may be as high as 33% reported. Juice of bad odor and not set well on boiling due to the conversion of sucrose into the glucose. Once it comes into the crop and severe condition, it smell like a bad smell, like a alcoholic smell produce. Low quality of sugarcane as well as reduction of the production. This disease reduce the production and productivity as well as the sugar content also. Even threatens the destruct of the entire crops of the field, leading to enormous losses. Not only its losses the yield as well as other content also losses into the crops. What is the symptoms? How to identify this disease into the field condition? First of all, the affected cane exhibit leaf color change. Once it comes into the field, it's change the leaf color, and then after it's change the color of cane inside the cane, and then turns to green to orange and then yellow in the third or fourth leaf. It starts from the lower leaf of the plant, third and fourth leaf. Then the leaves start drying from bottom to top. This is the peculiar symptoms. Once disease introduced into the crop, it starts bottom to top. You can observe to the crop from the disease symptoms start from the base to top of the leaves.
if the fungal spores enter the leaf sheath through the leaf of midrib. बेसिकली रिपोर्ट किया गया है कि जो ये डिजीज़ है एक बार इंट्रोड्यूस होता है हमारे प्लांट में, तो मिडरिप से स्टार्ट होते हुए शुगर केन के अंदर सिस्टम तक ये इंटर करता है। देन रेडिश स्पॉट कैन बी सीन ऑन द ब्लैक साइड ऑफ द लीफ मिडरिप, और ये जो रेडिश कलर होता है, स्टार्टिंग में रेडिश कलर होता है, धीरे धीरे बैक साइड्स और मिडरिप को भी ये कवर करता है। द एक्सटर्नल सिम्टम्स अपीयर ओनली आफ्टर 16 to 21 days after infection, and drying of the entire cane takes another 10 days. अगर ये इंट्रोड्यूस होता है हमारे क्रॉप में, तो ये हमारा 16 से 21 दिन में इसके इन्फेक्शन प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाता है, और जब इसका इन्फेक्शन रिपोर्ट होता है उससे 10 to 15 डेज के अंदर पूरी केन हमारी जो है वो ड्राई कर जाती है, सूख जाती है। The external when the affected cane is split open, the inner region is reddish in color with the intermittent white tints across the cane length. इसका इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, अंदर की जो एक रीजन होती है, अंदर का जो सिस्टमिक पोजीशन या ये कहे वास्कुलर का जो रीजन होता है, उसमें रेडिशनेस आना स्टार्ट हो जाता है, रेड कलर प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाता है। Sometimes the pith inside the cane is filled with the blackish brown liquid and exhibit alcohol odor. और कभी-कभी इसका जो पिथ का पोर्शन होता है उसमें ब्लैकिश कलर के स्पोर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जो कुछ समय बाद उसमें से अल्कोहल जैसा ऑडर, जब आप उसको इनहेल करेंगे, स्मेल करेंगे, तो वहाँ से अल्कोहल जैसा ऑडर आएगा, गंध आती है। पिथ कैविटी फिल्ड विद द ग्रेस माइसीलियम, और इसमें जब सीवियर कंडीशन आता है तो इसका पिथ का जो पोर्शन होता है, मींस इनसाइड नियर बाय द वास्कुलर सिस्टम, वहाँ पे क्या होता है कि ब्लैकिश कलर के हमारे ग्रेस कलर के माइसीलियम प्रोड्यूस होते हैं। जूस वेट ऑर्डर नॉट सेट एज वेल एज बॉइलिंग ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज, और ये जो इसमें अल्कोहलिक ऑडर आता है, अगर अल्कोहलिक ऑडर प्रोड्यूस होना एक बार केन में स्टार्ट हो गया है, तो उस जूस को अगर आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये एक ड्रॉबैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। लो क्वालिटी शुगर एंड कन्वर्जन इनटू अल्कोहल, और जो इसमें जो शुगर कंटेंट रहता है वो लो क्वालिटी का होता है, जो कि डे बाय डे अल्कोहल में कन्वर्ट होने जैसा उसकी ऑर्डर आती है। This is the peculiar symptoms of the red rot of sugarcane. Reddish lesion on the midrib. एक्चुअली जब भी ये डिजीज इंट्रोड्यूस होता है हमारे क्रॉप में, तो जो मिडरिब का पोर्शन होता है लीव्स का, उसमें रेडिश कलर के अपीयरेंस स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज अनदर सिम्टम्स, इसमें ऑरेंज से येलो लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ऑरेंज कलर के धब्बे स्पॉट आपको दिखाई देंगे, वो भी मार्जिन जो मिडरिब के आसपास की जो एरियाज होते हैं लीव्स का, जिसमें लीफ ब्लेड कहा जाता है साइड साइड में, वहाँ से पहले येलोइश ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो लीफ अपीयरेंस के सिम्टम्स हैं। और जब भी हम इस सेट को, इस केल को अगर हम क्लियर करके देखते हैं, तो इस टाइप्स के इसमें इस टाइप्स के अपीयरेंस दिखाई देते हैं। इनिशियल स्टेज में जब ये डिजीज इंट्रोड्यूस होता है, तो छोटे छोटे पैचेज में उसके माइसीलियम अपीयर होते हैं, और सीवियर कंडीशन में इसमें ब्राउनिश और ब्लैकिश कन्वर्ट जो माइसीलियम इसके होते हैं, ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। एसरबुलस का फॉर्मेशन होता है, कोनिडियोफोर बनाता है, और ये जो इसमें ये दिख रहा है, इसे सीटी कहा जाता है। सीटी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द कोनिडिया, एंड कोनिडिया आर अरेंज्ड इनटू द सक्सेशन मैनर इनटू द कोनिडियोफोर। So these are peculiar structure of the microscopic view of this pathogen. This pathogen is known Glomerella tokumensis. Glomerella tokumensis is a new name. The oldest name is Coltotrichum falcatum. After infection of this disease shows such type of pictures into the field. पूरी की पूरी जो फसल होती है, पूरी की पूरी फसल वो सूख जाती है,
कुछ ही दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट कम्स इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कौन कौन से इसके पैथोजन हैं, कारक हैं जो कॉज होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। पहला इसमें है कॉजल एजेंट कोलेटोट्रैकोम फॉल्केटम। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लास फंजाई इम्परफेक्टाई। जो इसका नाम है, जो बीमारी का नाम है वो कोलेटोट्रैकोम फॉल्केटम है। और इसका जो परफेक्ट स्टेज है, खासकर जो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं उसमें एक कॉमन स्टेज होता है और एक होता है परफेक्ट स्टेज होता है जो ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस है। तो हम इस पैथोजन को दोनों नाम से ही इंडिकेट करते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल फ्रूट बॉडीज आर कॉल्ड एसेर्बुलाई। जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, वो एसेर्बुलाई होता है। फंगस प्रोड्यूस द एसेर्बुलाई विथ सीटी। जो एसेर्बुलाई होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है सीटी के साथ में। एसेर्बुलाई आर ब्लैक वेलवेटी बॉडीज व्हिच डेवलप इनटू द क्लस्टर। जो एसेर्बुलाई होती है हमेशा क्लस्टर में इसका प्रोडक्शन होता है। जब भी ये माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक बंच में करते हैं, इंडिविजुअली नहीं करते। पैथोजन सर्वाइव इन सीड कैन इन्फेक्टेड स्टबल्स डेब्रिस एंड सॉइल एज क्लेमाइडोस्पोर्स। ये पैथोजन, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये सेट बॉर्न डिजीज होता है। सेट बॉर्न मीन्स in case of sugarcane we always select the set for the propagation for the cultivation. So this disease transfer only by the set. तो सेट बॉर्न को अगर हम सेट बॉर्न ना बोले, सीड भी बोल सकते हैं, जो गन्ने का सीड होता है उसके थ्रू ये इन्फेक्शन इसका फैलता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो इसके एसेर्बुलस हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स it is a special characteristics of the pathogen. It's produced by the fungus in the adverse condition. ये रेस्टिंग स्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअल में रेस्टिंग स्पोर्स होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में माइसीलियम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। एक उसका जो आउटर कवरिंग होता है एक नॉट टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जो रफ होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और वो रेस्टिंग स्पोर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक, महीनों तक सर्वाइव कर सकता है until unless it again get the favorable condition। और जब फेवरेबल कंडीशन पाता है तो ये फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल होस्ट पाने से क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद में फिर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स आर टर्मिनल आर इंटरकैलरी। जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये टर्मिनल या इंटरकैलरी होते हैं, बिटवीन द सेल पड़े होते हैं माइसीलियम माइट के साथ में। डिजीज इज सीड एंड सॉइल बॉर्न। ये जो डिजीज होती है बेसिकली सीड बॉर्न होती है। सीड बॉर्न डिजीज होती है बिकॉज इट्स प्रोड्यूस बाय सेट बॉर्न। एक्चुअली जब इसे हमें सेलेक्ट करना होता है तो हम पहले सेट की सेग्रीगेशन करते हैं। सेट में अगर इसका इन्फेक्शन है तो ये डेफिनेटली डिजीज प्रोड्यूस करेगा। और जो इसके क्लेमाइडोस्पोर सर्वाइव करते हैं सॉइल में या प्लांट डेब्रिस में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए डिजीज कॉज करने के लिए वो होते हैं। तो इसको हम सॉइल बॉर्न एज वेल एज सेट बॉर्न डिजीज कहते हैं। पैथोजन प्रोड्यूस द क्लेमाइडोस्पोर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। इट्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड इवैल्यूएट द फंगस बिलोंग टू द ड्यूट्रोमाइकोटिना मेंबर्स। इट्स कम्स अंडर द ड्यूट्रोमाइकोटिना मेंबर्स। Systemic positions. Systemic positions means classification. So all the fungi, all the mycota comes into the division mycota. Kingdom mycota and kingdom mycota, division eupmycota and subdivision Deuteromycotina. And class Coelomycetes, order Melanchoniaceae, family Melanchoniaceae, and genus जो इसका है Coleoptrichum species Falcatum. Genus and species, genus is same and species may be different by crop to crop and race to race. Now the mode of infection, किस रास्ते से, किस तरीके से ये जो पैथोजन है हमारे प्लांट में एंट्री करता है। तो पहला है इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द नोड्स। नोड्स इन केस ऑफ शुगर केन नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये नोड्स के थ्रू इंटर करता है क्रॉप में। मेन एंट्री पॉइंट्स ऑफ द लीफ स्कार्स
ग्रोथ रिंग्स, रूट प्रिमोडियल एंड बड्स। ये जो मेन एंट्री है इसका, लीफ में जो स्कार्स होते हैं, लीफ स्कार्स के थ्रू ये वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं जिनके मदद से ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, जर्मिनेट स्टार्ट करता है और उसमें एंट्री करता है। ग्रोथ रिंग्स, जो ग्रोथ के रिंग्स होते हैं शुगर केन में, उसके थ्रू एंट्री कर सकता है। रूट्स के प्रिमोडियल और बड्स, जो बड्स निकलते हैं जिसके थ्रू नए प्लांट्स बनते हैं, उसके थ्रू ये प्लांट्स में एंट्री कर सकता है। पैथोजन कैन आल्सो एंटर द स्टॉक थ्रू रूटलेट्स, ग्रोथ क्रैक्स एंड कट एंड्स ऑफ द सेट। ये खासकर उस समय भी कंटामिनेशन हो जाता है जब हम सेट को डिवाइड कर रहे होते हैं सोइंग के लिए। उस समय अगर इसके माइसीलियम या इसके स्पोर्स कटिंग के दौरान एक से दूसरे सेट में जाते हैं तो उससे भी इसके इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। अब आता है फेवरेबल कंडीशन ऑफ द डिजीज डेवलपमेंट। कौन से वो फेवरेबल कंडीशन है जिससे ये डिजीज आसानी से डेवलप हो सकता है। तो पहला है मेन टेम्परेचर रेंज ऑफ 29.4 to 31 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। अगर 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर है तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है इस डिजीज को डेवलप करने के लिए। पीएच इसका 5 to 6, अगर जिस भी आप फील्ड में इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, अगर 5 से 6 पीएच है तो ये डिजीज आसानी से वहाँ पे फ्लरिश कर सकता है। ड्रॉट कंडीशन ड्यूरिंग द इनिशियल ग्रोथ इज फेवरेबल। अगर जब सोइंग करते हैं, सोइंग के समय अगर ड्रॉट कंडीशन है, सूखे जैसी स्थिति है, तो वहाँ पे भी ये डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई ह्यूमिडिटी है तो भी ये डिजीज़ आसानी से वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। वाटर लॉग कंडीशन ऑफ द सॉइल, ये वाटर लॉग कंडीशन जहाँ पे पानी का जमाव होता है, जलभराव होता है, ऐसे कंडीशन में भी ये जो डिजीज़ है आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट तक आसानी से पहुँच सकता है। अब बात आती है डिजीज साइकिल्स, कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। पैथोजन प्रेजेंस ऑन द लीफ सीथ एंड ब्लेड। जो ये पैथोजन होता है लीफ सीथ, जो लीफ हमारा केन से डायरेक्ट टच होता है, उसके लीफ सीथ से ये इंट्रोड्यूस होता है और लीफ ब्लेड पे पाया जाता है। सॉलिटरी एंड एग्रीगेटेड, ये या तो इसमें स्कैटर्ड होते हैं या एग्रीगेट होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे इसके माइसीलियम मैट पाए जाते हैं। ऑफन फॉर्मिंग शॉर्ट लाइन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, ग्लोबोज डार्क ब्राउन टू ब्लैक। और उसके बाद में जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इस वैस्कुलर बंडल के रीजन में भी ये मल्टीप्लाई करने की वजह से सर्वाइव करता है, बिकॉज वहाँ पे सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे इजिली ये मल्टीप्लाई करते हैं। Pathogen survive in set, seed cane, infected vegetables and soil as Asst.Prof.SOAS। ये जो पैथोजन है सेट बॉर्न, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये सेट बॉर्न पैथोजन है और सेट बॉर्न से ही ये फैलता है, और अदरवाइज जो प्लांट डेब्रिस होते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, उसके थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज करता है। मडी रेड कलर एब्जॉर्ब बाय द पिथ्स, सो इट कॉल्ड रेड डिजीज। ये जो इसका जो पहले कलर होता है मडी टाइप का होता है, मीन्स कीचड़ जैसी मतलब इसकी प्राइमरी अपीयरेंस होती है। बाद में वो कन्वर्ट होकर के जब पिथ में जो इसका मेन सिस्टम होता है, अगर पिथ में ऑब्जर्व करता है और वैस्कुलर सिस्टम में अपना कलर चेंज करता है ड्यू टू द कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन, तो वहाँ पे रेड कलर के अपीयरेंस होते हैं जिससे इसको रेड रॉट कहा जाता है। रॉट मीन्स होता है सड़ना, रेड मतलब इसका जो रेड कलर होता है। डिजीज इज सॉइल एंड सीडबॉर्न, ये डिजीज सॉइल और सीडबॉर्न होता है। मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द बेस्ट वे टू कंट्रोल रेड रॉट इज द सेलेक्ट सेट फॉर प्लांटिंग फ्रॉम हेल्दी प्लांट इन डिजीज फ्री एरियाज। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे कहा जाता है, एक स्लोगन है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें क्या है कि अगर हम हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी सेट्स का प्रयोग करते हैं कल्टीवेशन के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा है इसमें द रेड रॉट अफेक्टेड फील्ड मस्ट बी रोटेटेड विद द राइस फॉर 1 सीजन एंड अनदर क्रॉप फॉर 2 सीजन। अगर किसी फील्ड में इसका इन्फेक्शन आया हुआ है, सीवियर कंडीशन में है, तो वहाँ पे क्रॉप रोटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन राइस के साथ में करिए, राइस में करने के साथ अगर प्रॉपर इसका माइसीलियम एयर बाई एज नहीं मिलेगा
तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस कर जाएगी, जो प्लांट डेब्रिस है वो प्रॉपर तरीके से फील्ड सॉइल में सर्वाइव नहीं करेंगे, तो हमारी ये डिजीज़, इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अगर हम राइस के अलावा किसी और क्रॉप के साथ इसका क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उसमें मिनिमम 2 ईयर्स के लिए हमें क्रॉप रोटेशन करना होगा। ग्रोइंग ऑफ रिकमेंडेड रेसिस्टेंट एंड मॉडरेटली रेसिस्टेंट वेराइटीज़, अगर जो डायरेक्ट हमारे जो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हैं या तो हम उन्हें करें या मॉडरेटली जो मॉडरेट है ऐसी वैरायटीज़ का चुनाव करेंगे तो हमारा इस डिजीज़ से हम बच सकते हैं। जिसमें हमारे कुछ सेलेक्टेड डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, CO 86032 and CO 86249, COSI 95071, COG 93071 and COC 22, COSI 6 and COG 5. These are some selected resistant varieties against red rot of sugarcane. Adopt seed treatment with carbendazim because it's a fungal disease. So इसका जो सीड ट्रीटमेंट है कार्बेंडाजिम से करते हैं एंड कार्बेंडाजिम 50 WP वेटेबल पाउडर 0.5 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। जब हम सेट को कट करते हैं सोइंग के लिए उसी समय हमें सेट को स्टरलाइज करना होता है, सेट को ट्रीट करना होता है, जिससे इस जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, रुक जाता है और मैनेज हो जाता है। तो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम के साथ में हम दूसरी अगर यूज़ करते हैं तो 2.5 kg यूरिया को 250 लीटर पानी के साथ विद कार्बेंडाजिम अगर हम इसको सीड ट्रीट करते हैं या सॉइल एप्लीकेशन करते हैं तो इस डिजीज को मिनिमाइज किया जा सकता है। The fungi-toxic chemicals like bevestin, benomyl, toxin and aeretan at 0.1% for 18 minutes। अगर हम फंजी-टॉक्सिक केमिकल्स से फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे बेवेस्टिन है, बेनोमिल है, टॉक्सिन और एरेटिन है, अगर 0.1% का यूज़ करते हैं तो इस डिजीज को मैनेज किया जा सकता है। At 52 degree centigrade for dipping sets with the gave almost complete elimination of rot infection। और इन केमिकल्स के साथ अगर 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको डिप करते हैं, मीन्स केमिकल के साथ में उसकी जो टेम्परेचर है पानी के साथ मिलाएंगे तो उस टेम्परेचर में इसको अगर हम सेट को 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो इस ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर सकता है, ऑलमोस्ट इस डिजीज से मैनेज किया जा सकता है।